Trinity B1 ISC1 4 skills test. CELT secure English language tests. B1 English test ISC1 skilled worker, health and care worker, scale-up worker, student visas. Let's start off with checking your homework first. Okay, what's your answer for paragraph 1? Paragraph 1 is E. नहीं, E बोला है या B बोला है? E for elephant. नहीं, एक मिनट, इसको ना एक दफा दोबारा पढ़ो पैराग्राफ 1 को और मुझे हिंदी में बताओ कि क्या मतलब हो सकता है इसका, पैराग्राफ 1 का। एक मिनट, है प्रिंट आपके पास? हाँ, पढ़ो पैराग्राफ 1। is the world's biggest film industry. Most people world probably guess is that is the United States or Hollywood. It's usually to thinking that the large American film companies and with all the money they have spent all over the world and destroyed the local film industry. The fact is a truth that the real situation is quite different. Film industry around the world are the very much alive. तो आपने इसमें से एक चीज नहीं पिक की। वो कह रहे हैं with all the money that they have spread all over the world and destroyed local film industries. But the fact is, देखो, एक है fiction, दूसरा है fact. Fact क्या है? The real situation is quite different. लोगों को लगता है कि American film companies जो हैं, they produce a lot of money, but the fact is different. Fact क्या है? Real situation quite different. क्या तो real situation क्या है? Quite हाँ, डिफरेंट तो है, लेकिन क्या है कि फिल्में जो हैं, फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया की ही काफी चल रही है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही चल रहा है, ठीक है? पूरी दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अलाइव है, चल रही है। अब मुझे बताओ कि ई तो नहीं हो सकता ना, व्हाई हॉलीवुड इज सो सक्सेसफुल, नहीं, वो फैक्ट कह रहे हैं, फैक्ट तो कुछ और ही है। अंकित, आप चूज करो, अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये आंसर नहीं है तो फिर कौन सा सूटेबल लग रहा है? be a common idea and but wrong. जी, एक आइडिया है कॉमन बट रॉन्ग आइडिया बिकॉज फैक्ट इज डिफरेंट। Yeah, because I too both are option is very confusion. कि मैं कौन सा लिखूं, बी लिखूं या ई? आई अंडरस्टैंड। ओके, अब पैराग्राफ 2। The answer to the question depends partly on what we mean by the biggest. There are actually several possible answers, and some will surprise a lots of people. If we are talking about know how many film different countries make, there is a definitely one clear winner. The number of film made in India far greater than any other country and seems rise every year. Most people have heard to Bollywood, which took its name from the center of the filmmaking, Bombay, now calling Mumbai, but in fact there are the 9 different regions producing their own film in 16 different language. मैंने आंसर उसमें बी लिखा था। अच्छा, वैसे अभी आपको देख के क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है आंसर? एक तो ये बोल रहा है कि
दुनिया में सबसे बड़ा जो फिल्में बनाने वाला है वो इंडिया है, ठीक है, सबसे हाँ ज्यादा फिल्में इंडिया में प्रोड्यूस होती है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। तो फिर क्या आपको लगता है ये? अ, ए। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो वो बात कर रहा है इंडिया इज द, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फिल्म्स, अगर हम ये बात करते हैं कि कितनी फिल्में different countries make, so there's definitely one clear winner. एक सबसे clear winner है, the number of films made in India is far greater than any other country. मतलब इंडिया में जो फिल्में बनती हैं उनका नंबर जो है, सबसे ज्यादा फिल्में पूरी दुनिया से इंडिया में बनती है, तो आंसर तो सीधा सीधा एफ ही होगा ना, many more films than the rest. ओ, रेस्ट का वो मीनिंग मुझे नहीं बाकी सबसे, समझ में इसका मतलब है रेस्ट। आया। हाँ, बाकी सबसे। ओके। ओके। नाउ थर्ड इज डी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड डी पढ़ो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। Americans, even the country that make the second highest number of the film, in fact, is the Nigeria is a West Africa, which produce nearly 50 film every week. Nigeria has made a film since the 1960s, but the growth of cheaper technology has now made its film industry into the second biggest employer in the country after the government. तो एम्प्लॉयर का क्या मतलब होता है? ये जो नाइजीरियन फिल्म इंडस्ट्री है, इसके अंदर गवर्नमेंट के बाद सबसे ज्यादा जॉब्स ये लोगों को देते हैं, ठीक है, Hmm. नाइजीरियन इंडस्ट्री में। तो क्या हो सकता है? A. जी, एन इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयर मतलब होता है प्रोवाइडर, जो जॉब देता है। ए है इसका आंसर। अंकित, कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं? Mm, अंकित, डू यू अंडरस्टैंड समथिंग और नॉट? yes, पर मुझे थोड़ा वो इंग्लिश प्रॉब्लम है तो ट्रांसलेट अच्छा, करूंगा। पहले जब किए थे सॉल्व तो पहले 1 to 5 किया था या पहले 11 to 15 किया था? पहले मैंने 1 to 5 ऐसे सब डायरेक्ट ही कि किया ऐसे था। नहीं करना, क्योंकि इसी वजह से तो सारे गलत हो रहे हैं। आपने पहले 11 to 15 करना है, कल भी आपको बताया था, फिर 6 to 10 करना है, और सबसे एंड पे 1 to 5 करना है, क्योंकि 1 to 5 डीप अंडरस्टैंडिंग लेता है टेक्स्ट की। उतनी देर में पढ़ते पढ़ते आपको उसमें से कम से कम नहीं 3-4 तो सही हो ही जाएंगे। इसको शुरू में नहीं करना अंकित, बहुत टाइम लगेगा, ओके। नहीं तो इसको सबसे एंड पे करना होता है। पहले फिल इन द 16 ब्लैंक्स, to 20। ओके। हाँ, फिर 6 to 10, 15। या फिर लास्ट पे ये, क्योंकि मेन आइडिया फिर वैसे इतना डीपली पढ़ लिया होता है कि वैसे ही याद हो जाता है कौन से पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। अगर ये पहले ही करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके। आगे पैराग्राफ 4 बताओ क्या है? फॉर सी। हाँ, ये ठीक है। द बिगेस्ट मनी मेकर्स, सी। और 5 is A, so it's wrong. फिफ्थ का अभी पढ़ के बता दो क्या हो सकता Local film industry is a fact are growing almost everywhere, from the north to South America and from Egypt to Vietnam. They may not be as large as, for example, Nigeria, but the same cheaper filmmaking technology now available makes it possible for them to keep going and to do well. Everywhere you look, it seems local film industry are the meaning to fight back against isn't the spread to America made the international film internet. है?
कितने सारे मुल्कों का नाम लिया है उसने, देखें, इजिप्ट, हम्म, वियतनाम, साउथ अमेरिका, ठीक है, या मतलब कि इट इज ग्रोइंग नाइजीरिया। एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे। ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, यही है ऑल ओवर, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ अंकित के नहीं? हम्म, चलो डी हो गया इसमें, फिर इसका मतलब आपने एक ही नंबर लिया। हाँ। अब ये 6 to 10 तो कोई पता नहीं है, सारे ही सही हो जाए। नहीं, आज मैंने क्या केयर में किया है सब, ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ाई की है, क्योंकि अच्छा, केयर में एक फ्री चीज है, टाइम। एक एक आइडिया देती हूँ, देखो, जब हाँ। पढ़ना या कुछ ऐसी कंसंट्रेशन वाली चीज होती है ना, उस टाइम पे वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। काम के साथ हम रील्स चला सकते हैं, काम के साथ हम साथ में कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब ये ऐसी कंसंट्रेशन वाली बात आती है ना, अपने लिए आपने 1 घंटा जरूर निकालना है, ठीक है। हाँ। उसमें टीवी ना देखो, कोई और चीज ना करो, लेकिन ये चीज आपने अकेले में कंसंट्रेशन से करनी है। हाँ। कोई अभी जरूरत आज नहीं से है, तो नहीं होगा हॉलीडे। तो ना आए, नहीं होगा तो नहीं देखिए, केयर में टाइम नहीं मिलता तो ना करे। यहाँ पे देख के समझ के जो पढ़ोगे ना, उसकी ज्यादा समझ आएगी। या खुद से आप अकेले क्लास के बाद कुछ सॉल्व करोगे तो उसकी ज्यादा समझ आएगी। अभी आज से तो हॉलीडे ले लिए है, एक 1 वीक का, तो अभी अच्छा अच्छा, चलो परफेक्ट दैट्स प्रैक्टिस नाइस, हो दैट्स गई। रियली गुड। हाँ। अब बताओ मुझे आंसर्स क्या है 6 to 10 आपके। 6 is a B, 6 is B। 7 हम्म। is a C, हम्म। 8 is a D, हम्म। 9 is a E, हम्म। 10 is a G. हम्म। Okay, it is easy to say which country has uh, the biggest film industry. No, this is false. Yeah. Filmmaking in India happens in more than one area. This is true. Nigeria has made about 50 films a week since 1960s. ये false है। ये false इसलिए है क्योंकि नाइजीरिया ने फिल्में बनानी शुरू की थी 1960s में, ठीक है। और हाँ। अभी जाके उन्होंने 50 फिल्में की हैं एक मंथ में कि एक वीक में, क्या, हाँ, एवरी वीक 50 फिल्में वो अभी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो ये नहीं है कि 1960 से ही 50 फिल्में करते आ रहे हैं। उसने बोला है कि इट इज नाइजीरिया एंड द वेस्ट अफ्रीका विच प्रोड्यूसेस नियरली 50 फिल्म्स एवरी वीक। उसके बाद फुल स्टॉप लगाया है, मतलब कि नया जुमला शुरू किया है, नाइजीरिया हैज मेड फिल्म्स सिंस द 1960s, ठीक है। वो अलग से उसने हाँ। बताया कि वो 1960 से फिल्में बना रहे हैं। आप हाँ। इसको हाँ। जोड़ नहीं सकते ना ऐसे, हाँ। ठीक है। ओके। या। पैराग्राफ में लिखा है कि नाइजीरिया हैज मेड अबाउट 50 फिल्म्स अ वीक सिंस 1960। ऐसी बात नहीं है, 1960 से तो नहीं उन्होंने शुरू किया बनाना, समझ आया। हाँ। आगे, ई रिसेंटली द जापानीज फिल्म इंडस्ट्री अर्न द सेकंड हाईएस्ट, ये भी ठीक है। मैंने आ, 8 8 में डी लिखा है। हाँ डी, चलो ये फॉल्स है, ये गलत है। द टेक्स्ट गिव्स 2 reasons फॉर सक्सेस ऑफ चाइनीज फिल्म्स, ये ठीक है। 2 reasons कौन से हैं? एक तो है ऑडियंस, वेरी लार्ज ऑडियंस। यस। दूसरी चीज है गवर्नमेंट हैज पुट अ लिमिट ऑफ 20 per year फिल्म्स। ये दोनों रीजंस उसने दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी आपका हाँ। ठीक है। नहीं, ये आपने लिखा ही नहीं हुआ, एफ नहीं लिखा हुआ, एफ ट्रू है। और many countries in the world are have जी भी ठीक है। New ways of filmmaking have helped local film industry to grow। हाँ, एच भी ठीक है। इसमें से 1 मिनट मुझे देख लेने दो कौन कौन से फॉल्स है। एक फॉल्स है, इट इज इजी टू से इन विच, नहीं ये फॉल्स है। और एक सी फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू हैं।
तो मैंने 8 में डी लिखा हुआ है, तो एक डी देख लो। डी तो फॉल्स है. False है Films ना? are not more expensive to make than they used to be. Up to technology is cheaper. Because of cheaper technology, it's very easy to make films. ओके फॉल्स है, ए फॉल्स है, सी फॉल्स है एंड डी फॉल्स है. बाकी सारे ट्रू. ओके या कितने मार्क्स हैं आपके? 3 हुए ना? हाँ 3, 2 फॉल्स हुए, 3 और 4 टोटल मिला के 4। 4, 8 करने हैं. आगे 11th. द रियल सिचुएशन, ठीक है. 12 इज यूनाइटेड स्टेट। नहीं, ये पैराग्राफ 2 में लिखा हुआ है कि द आंसर टू द क्वेश्चन डिपेंड्स पार्टली ऑन व्हाट इज मेंट बाय बिगेस्ट. अगर कोई आपसे पूछे बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, देयर एक्चुअली सेवरल पॉसिबल आंसर्स. उसके बहुत सारे जवाब हैं. सवाल के या जवाब. इफ समवन आस्क्स यू, इफ समवन क्वेश्चंस यू, बात तो यही है ना. If someone asks you, if someone questions you where the biggest film industry is, there will be several possible answers. ओके 13th. 16 different 16 different language means 16 different If लिखा you हुआ है compare the number of films different nations make, India is the clear winner. क्लियर विनर। ये लिखा हुआ है पैराग्राफ 2 में. अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा फिल्में कौन बनाता है, तो इंडिया इज अ क्लियर विनर. एंड 14 मैंने लिखा नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। कि समझ आ रहा है क्या है? इफ कंपेयर द नंबर ऑफ फिल्म्स डिफरेंट नेशंस मेक, मतलब नेशंस का मतलब कंट्रीज है ना. इंडिया इज अ हाँ क्लियर विनर. ये ओके लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो लाइन को एक दफा. हाँ क्लियर विनर हम्म, यस समझ आया ना? यस यस। आगे 14th. 14 मैंने नहीं लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें अमेरिकन फिल्में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं किस सेंस में? आप पहली लाइन पढ़ लो. ये कम आउट ऑन टॉप का मतलब है पहले नंबर पे है. कम आउट ऑफ टॉप का मतलब ये नहीं है टॉप से बाहर है. कम आउट ऑन टॉप का मतलब है टॉप पे हैं. तो पे है। पहली लाइन में है आंसर. अमाउंट ऑफ द मनी। जी हाँ, मनी ही मेक की जाती है ना, और क्या हो सकता है? आगे 15th. वेरी लार्ज ऑडियंस। बिल्कुल ठीक है. कंग्रेचुलेशंस. कितने नंबर हो गए आपके? एक तो 4, 2 4, 5. 6 6 हो गए। अब देखो 6 हो गए. कितने और चाहिए? 6 12 9। Let's try the next part now. संकेत, इसको करते वक्त कैसे किया था? पहले 16 to 20 किए थे? हाँ नहीं, वो उसका भी ना पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना, तो फिर था. ओके। आप मुझे बताने वाले थे कि मैंने एक बार बोला था ना आपको, मुझे टाइम ज्यादा, तो आप बोल रहे थे मैं आपको कई सारे वो वर्ड्स भी सिखाऊंगी और ये कैसे पेपर राइटिंग करना है ना, मैनेजमेंट, वो भी सिखाना। अभी टिप्स पता चली है ना सबसे पहले नंबर पे. तो ये हाँ पहले नंबर पे सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि इस पे टाइम लगता है. इस पे मेन आइडिया चाहिए.
Yes. चलो लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 9 नंबर चाहिए अंकित, अगर आपने ले लिए तो आप पास है। कौन सा पैराग्राफ रिपोर्ट करते हैं द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इन द लैंग्वेज लर्निंग? D. बिल्कुल सही। आगे 17। 70 is A. Give suggestions on learning language using technology। ठीक है। टेक्नोलॉजी वाला ए कैसे हो सकता है? टेक्नोलॉजी का मतलब है किसी चीज को इस्तेमाल करके। सारा तो खिलाफ है ऑनलाइन क्लासेस के भी। वो तो नहीं कह रही कि टेक्नोलॉजी यूज करके लैंग्वेज लर्न करो। ए नहीं है। It's B. Online. Lots of website with practice अंकित, and activity. कौन सा पैराग्राफ जो है सजेशन देता है यूजिंग टेक्नोलॉजी? इसमें अब टेक्नोलॉजी पता है कौन सी इसने यूज की हुई है? इंटरनेट को टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसलिए बी है आंसर। B. इसका आंसर बी है। Okay. 17. B. 18 का क्या लिखा है? 18 is a C. गिव्स रीजंस फॉर लैंग्वेज। ये ठीक है आपको? 19 is a C. नहीं। हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ट्रैवलर्स, बिजनेसमैन, ठीक है। And 20। 20 is a B. B for ball. नहीं ये गलत आपने लिखा। स्पीकिंग और लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो टिप्स है ना, वो टेक्स्ट ए में है। अगर पढ़ोगे ना आप, आपको समझ आ जाएगी। I think you can watch films or listen to music and songs in a language you're learning, then you will start to understand more you hear the language। ठीक है। ये Yes. स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल के बारे में पहला पैराग्राफ है, जिसमें वो कह रहे टॉक टू पीपल एंड ऑल्सो टॉकिंग टू अदर्स। ठीक है। दूसरी चीज Yes. कह रहा है कि हियर द लैंग्वेज मोर, मतलब सुन पाओगे ज्यादा लैंग्वेज। Now 21. कितने मार्क्स हो गए आपके इसमें? 3 आए ना? हाँ. That's fine। Now अभी 9. कितने हो गए? 9। ओके, अब कोई पता नहीं, इसमें से सारे सही हो जाए आपके। 21 to 25। 21 is A. ओके, ये तो है ही फॉल्स। कैथी तो चाह ही नहीं रही 20. इंटरनेट यूज करना, वो तो कह रही क्लास में जाओ ऑनलाइन कोर्स की बजाय। ये तो सही नहीं है। और 22 is a C. सारा आस्क्स अदर फॉर द, ये भी फॉल्स है। Means 21A is a false है. हाँ ये तो फॉल्स है ना, क्योंकि कैथी तो कह ही नहीं रही इंटरनेट यूज करना चाहिए। Okay. कैथी तो और कह रही है 20. क्लास में चली जाओ, अटेंड अ क्लास, टॉक टू स्टूडेंट्स। वो कहाँ पे है उसका आंसर? ये कौन लिख, से पैराग्राफ? ये पैराग्राफ ए में लिखा हुआ है। ये देखो पैराग्राफ ए। कैथी, कैथी राइटर है ना, ये देखो कैथी ने लिखा है ये कैथी है। अच्छा. कैथी कह रही है you should apologies, you asked me for your advice। First of all, I think you should try to attend a class। Okay. Yes, yes. आई थिंक इस मैं सोच रहा था ये सारा ने लिखा, हाय सारा लिखा, नहीं, तो बस मैंने हाय ऊपर सारा कोई. तो उसने सारा को लिखा है हाँ. ना, कैथी ने। कैथी की सोच है ना, जब अगर मैंने आपको लिखा है तो मैं नीचे लिखती हूँ मिस एंजेलिना, तो मतलब मैंने लिखा है आपको। हाँ. तो इसका मतलब है वो कह रही है फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू शुड ट्राई टू अटेंड अ क्लास रादर देन डूइंग अ कोर्स ऑनलाइन। वो तो इस फेवर में ही नहीं है।
Okay. ठीक है। Yes. 23 is a D. 23 का क्या लिखा है आपने? 20 D. D for dog. 23 का D है। जॉर्ज एंड लॉरी में एक हाँ ये भी ठीक है, 1 मार्क्स इसके भी आपको मिल जाएगा। आगे 24 24 एक बार मुझे देखना पड़ेगा, इसमें दूसरा कुछ लिखा है। 24 हाँ ई लिखा है। pupils sometimes continue language learning in their leisure time, ये भी ठीक है क्योंकि as a hobby। टेक्स्ट सी में लिखा leisure time का मतलब होता है as a hobby learn करते हैं, ठीक है। समझ मीन्स आ रहा है आपको? ई इज राइट। हाँ ये सही है। आगे एफ people learn languages so they can communicate on vacation, एफ भी ठीक है। 15% of language learners are too embarrassed, ये false है क्योंकि 11% है, ठीक है। और एज में है the main problem when studying a foreign language is lack of time, ये भी ठीक है। 25 में एच लिखा है, हाँ 24 में ये ई तो ठीक लिखा ही है है। क्योंकि देखो मेन वजह 24% नॉट इनफ टाइम ही है, ठीक है। अब मैं आपको Okay. इधर से करके दिखाती हूँ कौन से सही हैं। यहाँ से द मेन प्रॉब्लम व्हेन स्टडिंग अ न्यू लैंग्वेज इज लैक ऑफ टाइम, ये भी ठीक है। 15 ये फॉल्स है, जी फॉल्स है क्योंकि 11% है। पीपल लर्न लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट ऑन वेकेशन, ये भी ठीक है। तो पीपल ओकेशन का मीनिंग क्या रहता है, क्योंकि मुझे वेकेशन का वो मतलब समझ। छुट्टियां, हॉलिडे। हाँ वेकेशन वो तो है, पर वो उसमें कहीं पे लिखा नहीं है ना वैसा। क्यों नहीं लिखा हुआ? टेक्सी में चेक करो। टैक्सी हॉलीडे टेक्स या ठीक है। The number of हॉलीडे people traveling and taking holidays in other countries हॉलीडे has also या increased in the last 50 years. Many people want to be able to communicate, if only in a basic way, with the local people they will meet when on an international holiday. यस। और अंकित बताओ इसके आगे आपने क्या लिखा है? कितने सही हो गए आपके? 3 मार्क्स कितने हो गए? 9 and 3 12। या ओ वेरी क्लोज। अभी इसका बताओ इसमें क्या लिखा है? 26 देखना पड़ेगा। अदर कंट्री 26। 26 का स्टडी आना है। देखो उसने बाकी सारी चीजें लिख दी है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है ना। वर्क लिख दिया है, हॉलीडेज लिख दिया, एक चीज जो नहीं लिखी वो स्टडी नहीं लिखी। बिजनेस भी लिख दिया है, वर्क भी लिख दिया है, हॉलीडेज भी लिख दिया है। हाँ लेकिन अगर एज अ हॉबी भी लिख दोगे ना फिर भी सही हो जाएगा, ठीक है। हॉबी वो भी इसका आंसर है। आगे और बताओ बी में क्या लिखा है? 27 क्या है? 27 नहीं किया है। The नंबर ऑफ number of द tourists going टूरिस्ट abroad has gone up in the last 50 years, टेक्स्ट सी में लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लिखा होगा लास्ट 50 years सी में। या increase in the last 50 years। गॉन अप का मतलब होता है इंक्रीज। Yeah. आगे 28 का क्या लिखा है? 28 का टीचिंग। ठीक है। राइट। हाँ ठीक है। ओके 29 is मनी। 29 भी मनी है, ठीक है। 29 30 is online classes। हाँ गो टू नहीं, 30 है गो टू अ क्लास, सिर्फ ऑनलाइन क्लास तो वो उसने मानी नहीं कहती।
समझ आ रहा है कुछ? 13 में क्या आएगा? क्लास है सिर्फ आंसर, क्लास। क्लास। जी। ओके। ये वॉच फिल्म्स एंड ऑनलाइन गेम्स एंड एक्टिविटीज, ये उसने कैथी ने ऊपर बोला था, ठीक है। ऑनलाइन तो पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हाँ यहाँ हाँ पे तो आएगा गो टू अ क्लास, प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स। वो कहती है चैटिंग विद फ्रेंड्स, गो टू अ क्लास। ओके। कितने मार्क्स आ गए आपके? 14 तो नहीं आगे 14। गए? ओहो, 14। सो क्लोज सो क्लोज। राइटिंग तो की होगी ना? हाँ, राइटिंग अभी किया आधा घंटे पहले। आप अच्छा अच्छा, मुझे पढ़ के सुनाओ क्वेश्चन पहले। रीड द क्वेश्चन अलाउड प्लीज। या write an article on the educational website about the learning a new language. Explain why people want to learn a language. Describe the common problems of the language learning and discuss the best way of the learning a new language. That is right. Answer? क्वेश्चन भी किए, पहले प्लानिंग के लिखा हुआ है सिर्फ। उसमें explain why people want to learning language, talking and chatting with other students, traveling to abroad, taking holiday in other country, worldwide business and studies भी लिख सकते हैं हम, country, out of country. Common problem in the not enough money, not enough time, bad teaching, don't know any native speaker, and थर्ड वाला क्वेश्चन में attend a class online, watch the film, listen music and song, exchange the email, go other country. Firstly, I want to explain why people want to learn a language, because nowadays many people talking to many language and chatting with other students, traveling to abroad, study in abroad, taking holiday in other countries. Nowadays, many job and businesses worldwide, so communicated with other business people and customers abroad. And secondly, I want to describe the common problems of the language learning. Many people have not enough money, not enough time, bad education, not to speak other language to try. Thirdly, I want to discuss the best way to learning a new language. The language is talking to other, go to a class, use a lots of website, online class and learning activities, go to abroad, study in abroad, or watch the film and listen to song. Very nice, Ankit, you've passed. Congratulations. Okay. Writing is okay. Thank you. और साथ वाली नहीं की extended writing? नहीं, वो नहीं कि अभी। Okay. अच्छा, अब जो आपने नहीं किया ना उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू बिल्ड आइडियाज अराउंड इट। ये ओके। है ना, आपने नहीं किया हुआ? ओ नहीं, नहीं, एक किया है, फोर्थ टास्क 4 नहीं किया। अंकित रीडिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। आपको बताया है ना, पहले फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, फिर वो उल्टा इस दफा करके देखना, ठीक है। शायद क्योंकि अगर आपके उसमें से सही आ जाते ना पहले वालों में से, तो फिर तो हाँ इजीली हाँ। पास हो जाएंगे। ओके। कोई बात नहीं है, ब्लैंक्स नहीं भी आते तो कोई बात नहीं है, लेकिन और भी तो इतना मौका है ना। ट्रू फॉल्स भी तो सारे सही किए जा सकते हैं, सारे भी हाँ सही किए जा सकते हैं, 4 भी सही किए जा सकते हैं। ऊपर वाले मैच द हेडिंग तो इतने आसान है, वो तो वैसे भी बंदे को याद हो जाता है कौन से पैराग्राफ का क्या आंसर।
कल भी 14 ही आए थे, आज भी 14 ही आए। चलो कोई एक बात बार नहीं, ट्राई हार्डर। ओके, हाँ, ये है। अब लोगों का एक सवाल होता है कि टीचर, ये राइट एन ईमेल क्या होता है? ठीक है, 100 to 130 words टू अ फ्रेंड अबाउट एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस यू हैव हैड। अब ईमेल हो, लेटर हो, मैंने पहले भी आपको बोला है, मेन चीज ये कि बुलेट पॉइंट का जवाब देना है। ठीक है, जो उसने ओके पूछा है वो बस उसको बता दो। ये कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी है जिसपे आप लिखोगे डियर हाँ फ्रेंड और उसके नंबर मिलेंगे। नहीं, इंग्लिश का पेपर है, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दोगे, पास हो जाओगे। ओके। अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि आपका अभी रीसेंट एंजॉयबल एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो आप क्या बोलोगे? फ्रेंड्स के साथ तो मुझे 1 साल से तो इधर ही हूँ। कोई भी enjoyable experience. Maybe you traveled with your wife, maybe it या was your wedding anniversary, your birthday party, कुछ भी। ओके फ्रेंड्स के साथ नहीं, उसने बोला, उसने कहा किसी दोस्त को बताओ अपना recent enjoyable ओके experience. ओके। Last month is my wife's birthday, enjoying and party in recently August. What Uh, gift did you give to your wife? give you clothes, gifts, and we are going all together in my sister and my brother-in-law in sun farm, sunflower farms, and enjoy the whole day in sunflowers. First morning time we we get up and pray to God in my home. After we are going breakfast and up, after going sunflower farm and enjoy many games and enjoy lunch in sunflower farms and doing many activities. After we coming in home and make some favorite foods and decorate the uh, birthday celebrated balloons with decorated balloons and cakes. Okay, very nice. So why you will remember the experience? Sorry, Why will you remember the experience? uh, because it's my wife's birthday and I am very excited and very enjoyable day. Day is a very enjoyable and very big memory. Good. Um, can I write this for you? Just to give you Yeah, some ideas. okay. अब इसमें ये लिख सकते हैं हम, हेलो फ्रेंड। फ्रेंड, Yeah, firstly, comma, I want to describe an enjoyable experience I have had recently. Semicolon. yeah, It was my wife's birthday last week, comma. yes, I arranged a big party on the beach.
comma, Mhm. I invited all the school friends and Mm. relatives, full stop. Yeah. I gave an expensive purse to my wife, full stop. I arranged for a special DJ. All friends and family danced all night, full Okay. stop. And we played different types of games, Yeah. full stop. The food was very delicious, full stop. Yeah. On menu there were many Indian and continental dishes. Continental मतलब English खाने जो होते हैं. Okay. Secondly, comma, I want to say why I will remember the experience, Yeah. semicolon. It was my wife's 20th birthday, full Yeah. stop. It was our first birthday with our baby boy, full stop. Yeah. I met my friends and family after a very long time, Yeah. full stop. We took a lot of photos and danced all night. It was a very memorable day for me. I can never forget it, full stop. Okay. से मेरा ख्याल है 100 से तो ज्यादा ही लिखा. समझ आ गया अंकित? हाँ, मैं एक कुछ पिक्चर ले लेता हूँ. हाँ, कुछ नए आइडियाज, कुछ नई स्पेलिंग. अगर कुछ Yeah. गलती हो गई हो कॉमा से रिलेटेड तो बस देख लेना, क्योंकि बोल के लिखा है. हाँ हाँ. समझ आ रहा है? Yes. Thank you. Thank you. Okay. See you tomorrow. Welcome. Bye. Take care. Bye.